এবং 5 সেপ্টেম্বর 2023 ইং বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। মেধা তালিকা প্রকাশ 6 সেপ্টেম্বর 2023 ইং বিকেল 5 ঘটিকায়। ITI এ ভর্তি 8 সেপ্টেম্বর 2023 ইং বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। PWD প্রার্থীরা RPWD এর 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট এর সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট তথা মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, ARTC, আধার কার্ড, PWD সার্টিফিকেট অবশ্যই ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ITI ইন্দ্রনগর এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া রয়েছে। मा कुंजश्री ज्वेलर्स नि लोगिवो बिस्कांगनि असामाताइनि तंथकमानो डाबल क्राइदि सनामुंनि याफा विश्वकर्मा पूजानो रुकै मा कुंजश्री ज्वेलर्स तो बय फाइखा जत्तो पाइमो ते रांचाक सनामुंनि मेकिंग चार्ज 30% डिस्काउंट आबोनि लोगि लोगि तंगो 30,000 नि पाइमुगो kaham shokat मुइतो नारकदि अ ऑफर तंगनाय 10 सेप्टेम्बर शालमारि निशिमि 20 सेप्टेम्बर शालमारि जरा खाथुंमाते तंथंमा बाय कुपलुं उंबै फाइथुं नरकनि नायतुकमुं ते पाइमुं फियाबा नरकनि पाइमुं मा कुंजश्री ज्वेलर्स नि थानिसिनि उंथुं मा कुंजश्री ज्वेलर्स where luxury can be affordable। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ITI খুমুলুং 2023 ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা ITI খুমুলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1 কাউন্সিলিং এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, PRTC অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট অব এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2 অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3 বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা ITI খুমুলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 /9612806087 /7085393174। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর। मा कुंजश्री ज्वेलर्स नि लोगिवो बिस्कांगनि असामाताइनि तंथकमानो डाबल क्राइदि सनामुंनि याफा विश्वकर्मा पूजानो रुकै मा कुंजश्री ज्वेलर्स तो बय फाइखा जत्तो पाइमो ते रांचाक सनामुंनि मेकिंग चार्ज 30% डिस्काउंट आबोनि लोगि लोगि तंगो 30,000 नि पाइमुगो kaham shokat मुइतो नारकदि अ ऑफर तंगनाय 10 सेप्टेम्बर शालमारि निशिमि 20 सेप्टेम्बर शालमारि जरा खाथुंमाते तंथंमा बाय कुपलुं उंबै फाइथुं नरकनि नायतुकमुं ते पाइमुं फियाबा नरकनि पाइमुं मा कुंजश्री ज्वेलर्स नि थानिसिनि उंथुं मा कुंजश्री ज्वेलर्स where luxury can be affordable।
खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतनो नलाम सको चिनी ताबुक sak jorani kokbro koktamawo puilano faidinai layano tinini koktama bokrok rok Constitutional Solution ni Shanmungo Finai 30 September Salmari Wadam Chene Jorani Bagai ADC Bon Saklai Kati Pramotha Chashalano Yungmawo Kasha Koktum Panda Klai o Saklai Mongrekha Ti Pramotha ni Kazam Chairman Moharaja Pradut Kishore Deborma Baik he bekara jek songni nok ni nogo kiprimani nama wal har party mongo kalai jokha Rakesh Mia Mungai khoroksa borok ni rangma aba haigeno thimajak bidi bihi te khorok tham basarok party mong phasal chhareko Udaipur ni gorji amsayo Shikangni joli laimani party mongno kitingai phasal hora pukhri ni teyo bithelo khlai ramani bai thui thangbai kha pukhri ni beba kotor chikon a party mongo subroto namo sudra mongoi khoroksa borokni sakawo kokse jamati saka nokang bisajit namo sudra party mong khwai thanani utor singni sara amsayo Kango Zora Khazak Tongmani Haige Chashalo Rajokhara Agulini Doshro Dev Auditorium Honoko Khlaijaka IPFT National Federation for New State ni Joint Convention Panda Pandao Manjaka NFNS ni President Dr. Manis Tamang Kaichuku Shanmungo Deputation Romani Jorawa Ponchayat Secretary ni Thani Mungsha Phirok Mumanya Amgai Paithago Ponchayat Tangnok ni Doklam Tala Khabre Rekha Amsani Rokorok Shakni Bokrok ni Bukna Shile Cancer Bemar Manja Khoroksa Sakara Jakno Bukna Yafarka Bishiba Umoni Anshuya Gus Mongai Khoroksa Sarai Shishu Bihar School KG2 Pori Witongai Bishiba Umoni Ocherani Shamung Nonogoi Bono Belai Khatung Jakmani Yafar like a Hastini Jotolo Kura Tabukok Tama Shukrubai Constitutional Solution ni Shanmungo Finai 30 September Salmari Wadam Chene Jorani Bagai ADC Bon Saklai Kati Pramotha Chashalano Yungmawo Kasha Koktum Panda Klai o Saklai Mongrekha Ti Pramotha ni Kazam Chairman Moharaja Pradut Kishore Deborma Greater Tripura Land Shanmungni Koni Phai Paithago Haino Hai Kotor Jungjalo Kusana ni Phaising Tabuk Ti Pramotha Abuno Te Shikangni Shimino BJP IPFT Te Bodolni Kisha Ozamarokni Bakhaktai Ti Sajaka Kokshir Jamong Abuno Te no Ti Pramotha Bai Kagai Thangka TSP Bodol Mothabai Kagai Fainai TSP Ozamarokni Kokshir Jamong Abono Waishake Greater Tripura Land Waishake Constitutional Solution Waishake Interlocutor Ti Pramothoni Shoikubui Ideology Eba Shanmung Bobo Abono Te Kamangmao Kalaijak Bodolni Kishashok Ozamarokno Khoboi Hastini Jotolo Korok Phiaba Bodolni Ideology je Safano Ungthong Nangmani Jorawa Shepna Haroi Ti Prasharokni Bagai Khorang Tisawai Bodolno Changa Khlainani Chaitokha Ti Pramothani Asaifang Moharaja Pradut Kishore Deborma Abo Haikeno Constitutional Solution ni Shanmungo Finai 30 September Shalmari Wadam Chene Jorani Bagai ADC Amsayo Bon Saklai Kati Pramotha Phungni Damdok Jorani Shimi Sharikni Damdok Jora Tongnai Obon Chashalano Yungmawo Kasha Koktum Panda Khlai o Saklai Mongrekha Ti Pramothani Kazam Chairman Moharaja Pradut Kishore Deborma Thank you, friends. Today we have kept a press conference here just to inform all the people in media and through you the entire people of Tripura that on the 30th of this month, September, we will be holding a one-day bandh in the ADC areas to press for our demand for a constitutional solution with the Government of India. The bandh will be from 6 a.m. till 6 p.m. But this is a beginning of telling the Government of India that we want an early solution to our problems. And on the 30th of September, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, 30 तारीख सितंबर में
अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक आवाज़ में तिपरासा बन के एडीसी एरिया में 12 घंटा का बंद रखेंगे। सब इसेंशियल सप्लाईज को हम आने जाने देंगे, एम्बुलेंसेस को आने जाने देंगे, लेकिन त्रिपुरा में 30 सितंबर में 6 बजे से सवेरे से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा त्रिपुरा बंद रहेगा, क्योंकि दिल्ली को हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इसका अर्ली सोल्यूशन का आप हल निकालिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स है लेकिन पेशेंट्स इज रनिंग थिन एंड इन अ वे हम लोग एक सिंबॉलिक बंद कर रहे हैं, एक आवाज़ में दिल्ली को एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें अपने इंडिजिनस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर तिपरालैंड होना चाहिए। तो ये आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। तिपरा मोथा 30 सितंबर को एडीसी में पूरा दिन बंद रखेगा और मैं पूरे पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, महिला को, जो भी अपना तिपरासा है, जिसको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, पार्टी के साथ नहीं, जाति के साथ न्याय नहीं हुआ है और हमें संवैधानिक सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ 12 घंटे के लिए अपने जाति के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, थानसा दिखाइए और एक आवाज़ में हम लोग दिल्ली में मैसेज भेजेंगे कि हम लोग शांति से भी लेकिन सॉलिड होकर, एक होकर एक मैसेज भेज सकते हैं। इसी के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। दैट्स ऑल। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू। ADC area, because we know that outside ADC area, Tipra Mota has limited influence, and why should we go and shut down shops of people who are not affected in our movement? I don't want any communal sentiments to come up. This is a message to the government of India from the Tiprasas. If other people want to support our ban, they are most welcome, but we will not force them. But from the Tiprasa community side, we will definitely send a message to the government of India that we want justice for our survival and existence of our people. सोशल बांग्ला एक सवाल ये है कि आपने अमित शाह जी के साथ बहुत बार हमने देखा है, बैठक किया है, तो अब क्या जरूरत है कि उनके साथ बैठक करने के बाद भी प्रेशर रखना पड़ता है मैडम, प्रेशर रखना पड़ता है। प्रेशर नहीं रखेंगे तो कोई याद नहीं करता। हिंदुस्तान में त्रिपुरा बहुत छोटा स्टेट है, उनके पास बहुत पूरा देश को चलाना है। तो अगर हम लोग अपना प्रेशर नहीं रखेंगे तो हमें कौन याद करेगा? तो हमको प्रेशर रखना पड़ता है। हाँ, हमने मिला है, अच्छे से बात भी हुआ है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन प्रेशर रखना पड़ता है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मनोरंजन के लिए तो आया नहीं हूँ, उनको अपना लोगों का बात भी तो बताना है। तो अगर उनके माइंड फ्रेम में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तो हमको प्रेशर रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। देखिए, ये सवाल तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा ना, मैं अकेला कैसा बोलूँ? लेकिन उनको प्रेशर में मतलब उनके नॉलेज में रखना पड़ेगा कि यहाँ में एक जेन्युइन सेंटिमेंट है और ये सेंटिमेंट पॉलिटिक्स से बड़ा है, ये सेंटिमेंट इमोशनल है, ये सेंटिमेंट हमारे अधिकार का है। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल माइलेज करो, हमको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए और वो आपने कार्बी आंगलोंग को दिया है, बोडो को दिया है, मेघालय को दिया है, मिजोरम को दिया है, आप दिमासा को दे रहे हैं, तो हमें भी दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? जिस टाइम आपका साथ बैठक हुआ, सेवरल टाइम बैठक हुआ, तब वो इनका मन में क्या है? वो सॉल्यूशन चाहता है कि नहीं चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो चाहता है, मुझे तो लगता है वो चाहता, पॉजिटिव, वरना मुझसे बार बार क्यों मिले? ऐसी तो नहीं मिलेगा स्टेट का होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर मुझसे बार बार मिल रहा है क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ में भी तो लोकल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आवाज़ में दिल्ली में बात करेंगे तो फिर से क्लासिक केस होगा कि हम लोग डिवाइडेड है और कोई हमें और एल्स रूल करेगा। इसके लिए एक आवाज़ में एक आवाज़ उठाने से अच्छा होता है। जब एडीसी भी क्रिएट हुआ था
तो चंदन पत्रिका का अपना जो मालिक है, ही स्टिल अलाइव, ही हेल्प श्यामाचरण त्रिपुरा. तो इट्स नॉट ओनली दैट टिप्रासास हैव टू ओनली हेल्प टिप्रासास. आई होप दैट एवरीबडी एल्स आल्सो कम्स आउट. जब गांव में इतना गरीबी है, वो है, पानी का समस्या है, नौकरी का समस्या, आप खुद देखते हैं अपने आँख से, तो आपको भी हमारे लिए बोलना चाहिए. अमित शाह जी के साथ आप किस बारे में बात हुई? मैंने कह दिया कि मैंने किस बात में बात किया. एवरीथिंग इज ऑन द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर त्रिपुरा लैंड. और क्या बात करूँ उसकी? মহারাজ এক কোশ্চেন টিএসপি কিছুদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিল যে মথা থেকে টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর, যেহেতু টিএসপি তাদের বক্তব্য টিএসপির এফিলিয়েশনে এডিসিতে নির্বাচনে মথা জয়ী হয়েছে, তো টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর এডিসি সংকট দেখা দেবে বা মানে এডিসির যারা সদস্য, যারা জনপ্রতিনিধি, তাদেরকে টিএসপিতে আসার জন্য বলা হয়েছে, তো এডিসিতে কি কোনো সংকট আছে মনে করেন? देखिए, এটা টিএসপির বক্তব্য। টিএসপি का कौन है? ये रजिस्टर्ड. না ওরা আমি কালকা নতুন পার্টি আরম্ভ করতে পারে, আমি বলবো আমি কংগ্রেস ও অরিজিনাল, আর আমি বলবো কি আমাদের নেতৃত্বে হয়েছিল, আমার প্রেসিডেন্ট, এই আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এমন হয় না. आई हैव गॉट फुल लीगल डॉक्यूमेंट्स. सो देखिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, डेमोक्रेसी है. एंड ये लोग बहुत सीनियर लोग हैं, एजड लोग हैं, तो सिस्टम अब चेंज हो गया है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चेंज हो गया है. हम लोग ने जो भी किया है थ्रू द रूल्स किया है. और अगर आदमी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आदमी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी को अगर नया पार्टी खोलना, आप खोलिए, टीएसपी खोलिए, टीपीएफ खोलिए, टीकेएफ खोलिए, टीटीएकेपी खोलिए, जो भी खोलिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम लोग अपना एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो डिमांड उठा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है, और हमने अपने डिमांड में कॉम्प्रोमाइज़, डाइल्यूशन नहीं किया. तो हम गवर्नमेंट में भी नहीं बैठे हैं अभी तक. वाई? Because we want to give something to our community, to our people. So anyone can say whatever, but in the end they have to justify kyun. And I don't want to give some of these people very much importance. They are not important. If they were important, they could have fought for the elections, they would have got the tickets also. But they have not. Don't give them very much importance. I love Sridham. I've known him since Congress days. No problem. He's got every right to form a party. पार्टी खोलना मुश्किल नहीं है, न्यूज़पेपर खोलना भी मुश्किल नहीं है, टीवी चैनल्स खोलने भी मुश्किल नहीं है. चलाना और मेंटेन करना प्रॉब्लम है. आप लोग भी जानते हैं, आप लोग को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो স্যার, গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া যদি আপনাদের ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবি ছাড়া যদি অল কাইন্ড অফ যদি ডেভেলপমেন্ট যদি আপনাদের করে দেয়, তাহলে কি আপনি এই দাবি থেকে সরে যাবেন? वो तो let the government of India give us a proposal. I'll show it in front of you all. Make it public. ऑफिशियली अगर कोई प्रपोजल दे दे तो हम पब्लिकली दिखा देंगे, उसके बाद सब बैठ के बात करेंगे. लेकिन पहले ऑफिशियली कागज़ तो आ जाए जब. लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अगेंस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल्स इंटरेस्ट. इज़ ओनली दैट अभी मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लेके थोड़ा डिले हुआ है. बट जब तक कागज़ हाथ में नहीं आए, मैं कैसे बोलूँ कि ये ठीक है वो ठीक है? मुझे अपने लोगों Phiaba bond ni shanmong constitutional solution ang yawai tamani greater Tripuraland ang liya eba edition amsa yo shimino bond khlaya wai tamani haste ganang ge khlai jak liya bond abano te ye kok tama thomnai rok ni sungmongo mongsa kok sanani nai liya Tripura mothani asai phang maharaja Pradut Kishore Dev Burma. आप हाँ, मैंने कहा ना कि पीपल वांट टू स्पेकुलेट. स्टॉक मार्केट तो है नहीं. हाँ, हम लोग हाँ, আমি এক সময় বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল, আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিল, ये हमारा स्टांस ছিল. पार्टी का स्टांस होता है. एक समय আমি ना ना कथा सुने लो, जब आप कोई पार्टी में होता है तो आपका पार्टी का लाइन लेना पड़ता है. पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट. अच्छा, शांति से हम बोल रहे हैं. हमने तो नहीं बोला है कि जाके किसी की दुकान रोक दो. हमने तो अपील किया है कि प्लीज़ सपोर्ट इन द बंद.
आई वाज फॉर सपोर्ट। हमने तो नहीं बोला है कि हम बंद करेंगे, हमने बोला कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और बंद कीजिए, हमने ये बोला। इलेक्शन के टाइम मीटिंग हुआ था अलायंस के लिए, मैंने कहा था जब तक राइटिंग में नहीं होगा नो अलायंस। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमें सिंसियर अलायंस से पहले हमें अपने जनजाति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो देने के बाद व्हाई नॉट, बट उसके पहले रीजन बाय इलेक्शन में तो अमित शाह मेट मी बट नॉट फॉर द इलेक्शन, वी डिडंट फाइट द इलेक्शन। हमने तो इलेक्शन फाइट ही नहीं किया धनपुर में और बक्सर नगर में, नहीं ठीक है, बक्सर नगर धनपुर में तो हमने इलेक्शन फाइट ही नहीं किया। आज तो कोई हमको अक्यूज नहीं कर सकता ना कि हम वोट कटवा पार्टी है। फ्री एंड फेयर डायरेक्ट फाइट था बिटवीन सीपीएम सपोर्टेड बाय कांग्रेस, इंडिया अलायंस एंड बीजेपी। रिजल्ट आपको मालूम पड़ गया। रिगिंग हुआ या ना हुआ, ठीक है, एक बात है कि लार्जेस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया, इंडिया अलायंस का बिगर पार्टनर कांग्रेस पार्टी, उनसे भी कंसल्ट नहीं किया, बिना बोल के अनाउंस कर दिया कैंडिडेट। आप लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन, और आप बिना पूछ के आप कैंडिडेट अनाउंस कर देते हो और उसके बाद बोलते हो बाय रिगिंग होता है जब आप डरते हो। एडीसी इलेक्शन में हम लोग ऑपोजिशन में नहीं थे, मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ था, हमने फाइट नहीं किया। कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट था कितना रिगिंग हुआ, इलेक्शन कमीशन ने 167 बूथ में पोलिंग कराया, हम लोग 1% से 27% चले गए, सीपीएम 55% से या 60% से 19% आ गया। क्यों? आपके ऊपर जब अटैक होता है आप डर के भाग जाते हो, आप अपने वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तृणमूल कांग्रेस भी आप बोलिए, जो भी बोलिए, लास्ट ईयर जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ दे फॉट, अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे फॉट, मार खाया, लोग फाइट किया। ये लोग तो जब पावर में नहीं है तो एकदम दूसरा गली से निकल जाते हैं। अटैक क्या सिर्फ सीपीएम को होता है, हम लोग को नहीं हुआ कैसे अटैक? इतने साल सीपीएम पावर में था, रिगिंग का जो ब्लू किताब है, ब्लैक बुक है रिगिंग का, कैसे रिगिंग करना चाहिए, वो तो सीपीएम पार्टी ने लिखा है। वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, त्रिपुरा हो, इट्स अ डिजाइन बाय सीपीएम। I feel bad for CPM, but they should have consulted the Congress party. They should have consulted us before announcing. They did not consult us. They just went and announced it. So we are not going to just follow CPM party just because they think that we are not in the government, that हम लोग automatically जाएंगे। उनको थोड़ा सा कांग्रेस से पूछते, हमसे पूछते। असेंबली इलेक्शन के टाइम कांग्रेस से बिना बात करके 47 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो थोड़ा सा पावर में नहीं है आप, थोड़ा सा जमीन में आकर सबके साथ बात कीजिए। हाँ क्या? No, band is not a solution, but is नहीं, it's okay. Band is not a solution. What question you asking? But band is a step to bring attention so that we can bring solution. It's a movement. Right? Sometimes when you say to the leader, I am against you, you are not necessarily against, but you are telling the leader to pay attention. ये कौन क्यों बोल रहा है? We are trying to bring attention to the government of India, because solution can never be through guns. But the Nagas are carrying guns. Government of India is talking. For how many years? MNF was using guns. Government was talking. Vijay Rankol had TNV. Government of Rajiv Gandhi spoke. हम लोग तो बंदूक नहीं उठा रहे, हम तो पीसफुली कर रहे हैं। हड़ताल इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आपने मुझे बॉयकॉट किया, इज दैट अ सोल्यूशन? नो। Many people boycotted me, but is that a solution? No. But it is to bring attention to why this is happening. But that's it. I support the women reservation bill. I think it should be implemented in 2029. Women reservation bill absolutely should be implemented. I support India's position on Canada. Canada cannot keep Khalistani terrorists
and then expect India to do chocolate diplomacy. I support India's foreign policy. When it comes to foreign policy, I support women's reservation bill within the country, and I absolutely support the India's reaction to Canada. I think it should be implemented in 2029. जितना आप women को पीछे रखोगे, उतना मेकअप करना मुश्किल होगा. 24 I don't think it's possible because आप लोग ने सेंसस ही नहीं किया. अब मैं बोलूँगा, देखिए अभी मैं बोलूँगा जस्ट टू मनोरंजन किसी को करने के लिए नहीं होगा. पहले सेंसस आ जाए. और डिलिमिटेशन में एक चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया को 150 सीट एक्स्ट्रा मिले, साउथ इंडिया को 20 सीट एक्स्ट्रा मिले और नॉर्थ ईस्ट को 2 सीट एक्स्ट्रा मिले. तब तो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान ही डिसाइड कर लेगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है. हम लोगों को कोई सुनेगा नहीं. तो डिलिमिटेशन ऑल्सो शुड बी प्रॉपरली वेयर रीजनल geographical representation has to happen. Balance. There is a demand also coming. 2011 there was a cluster. The reports have not been till yet published. 98% it is correct, and the changes that was done, it is pending in the Supreme Court. What is your view? Let the Supreme Court decide. हम बोलेंगे तो सुप्रीम बोलेगा क्यों आपने डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट. 98% the changes have been made which were demanded from the states, but ultimately the cluster was not. 2011 it was Congress government, no? So they should have taken a decision. 125th amendment that we are asking for was under Congress government. They didn't decide. Now this government is there. Point is, both sides have their role. 10 years Congress was in power. Why didn't they give us some solution? So now these people are there for 10 years. We want some solution. If they give it, great. If they don't, then दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग. ना Madam, very sweet question. Sweet like you. I support only those people who support my Tiprasa people. ठीक है? My support and my loyalty is with my Tiprasa people. You support my Tiprasa people, I'll support you. You don't support my Tiprasa people, then I'm sorry. बस. सर आपके ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया गया है कि तेईस के इलेक्शन से पहले आपने जितना ग्रेटर टीम को ब्रांड किया था या फिर सबका आपने यूज किया था सोशल मीडिया में, आपके हर प्रचार में, असेंबली इलेक्शन के बाद आपके मुंह से ग्रेटर टिपरा लैंड बोल दिया. आयुक लक्थों ग्रेटर टिपरा लैंड. आंगथुई अंखा त्रिपुरा हनी बागोई ग्रेटर टिपरा लैंड. आयुक लक्थों बोल दिया मैंने. अब रोज मैं पैलेस के ऊपर उठ के क्यों बोलूं? हाँ, बोल दिया मैंने, अभी बोल दिया. मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे भी समझना है कि मेरा लोगों को, मेरा तिपरासा लोगों को, उनका भी कष्ट है. मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा फाइट नहीं, ये इनका फाइट है. मैं तो सिर्फ एक ब्रिज हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना तिपरासा के बीच में. I just want to give something to my people, that is it. And it is not about me, it is about Mewar, Rajeshwar, Jagdish. Everybody wants to give. Even you, I'm sure you want to help us. Yang te khaksa faising fainai 30 September Shalmarini bond no mukthang khlainani bagai joto tipra sorokni chobasu shanka tipra mothane asefang Maharaja Pradut Kishore Deborma. Ashalni kokthum pandao manjaka ADC ni chairman Jagadish Deborma, tipra mothane haste ozama Mebar Kumar Jamatia, Rajeshwar Deborma, EM Komal Koloino khoboi tipra mothani kubun ozamarok. Raja khor agulini shimi omite probini kokthum chini khorang. Baik he bekara jek songni nokni nogo kifilmani nama wal har party mongo kalai jokha Rakesh Mia mongai khoroksa borokni rangma aba haigeno thimarajak bini bihik te khorok tham besarok party mong phasal chhareko Udaipurni gorji amsayo haste ni greng saya greng sa amsayo salbrum no lahar party mong party mani rok nokjagai dongo aba haigeno phasalo hik sai khorok noite busa khorok thamna to ye baik ke bekara jek songni nokni nogo kifilmani nama wo lahar party mongo kalai langma chonani nangkha Rakesh Mia mongai khoroksa borok Party mong phasal charigo Udaipurni gorji amsayo koktomani bisingti saimangka Rakesh Mia mongai oborok bonduar amsani bekrajak songni nok niki filmani lamawa ajam sawagon ar malkhong phai bini bike no thudai re phaimani bai lahar party mongo kalai langma chonani nangka hanai party mongni yagolo koktoma rohorka fire service ni adong rokno koktoma mankheno fire service ni adong rok party mong thayo thangai borok khorok bano tepaniya sakhamnogo talangai thangka phiaba borok ni sak belai hameni bagai borok no refer khlai jakha jibi sakhamnogo
আবন ইয়াগুলো জিবি শাখানগর সগিয়াসিনী শিকাংলা ডাকিস মিয়ানি লাংমা চমানি কক্তমা ঘটনাটা শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গেছিল। দুদিন পরে কালকে 11টার দিকে বাড়িছে বাড়ি থেকে, শ্বশুর বাড়ি থেকে। তো বাড়ি যাওয়ার সময় বর্জি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। রং সাইডের থেকে উল্টো গাড়ি আসে, একটু বাড়ি যাওয়া ওখানের গাড়ি। তো বাড়ি যাওয়ার পরে তারা 3-4 5 যাইয়েছিল, বাচ্চা টাচ্চা সহ পুরো ফ্যামিলি সবাই আহত হয়। তো বাইকের মধ্যে কতজন ছিল? বাইকের মধ্যে 5 জন ছিল, বাচ্চা টাচ্চা ফুল ফ্যামিলি ছিল তারা, বাচ্চা টাচ্চা সবাই মিলে। তারপরে তাদেরকে দমকল বাহিনী আসে, টেফেন্ডা নিয়ে যা, টেফেন্ডা থেকে যতটুকু তারা সম্ভব করে এখানে রেফার করে দিই। 5 জনকে মানে জীবিত রেফার করা হয়েছে, জীবিতে রেফার করা হয়। তারপরে কালকে 4টা 3:30টার দিকে আমরা জীবিত আসি। 5টা 10-এ রাকেশ মিয়ার মৃত্যু হয়, যে বাইক চালাইছে আর কি। আর ওনার স্ত্রী এবং বাচ্চাদের অবস্থা কি? তারাও ক্রিটিক্যাল অবস্থা আছে এখন, এখনও ডাক্তারও কোনো কিছু করতেছে না শিওর। তো একটা বাচ্চা, 2টা বাচ্চা খুবই একটা সিরিয়াস আছে। জীবিত আছে? হ্যাঁ, জীবিত আছে। কি গাড়ি ধাক্কা দিছিল? এটা ওখানের গাড়ি ছিল, রং সাইডের থেকে এসে ধাক্কা লাগে। গাড়িটা আটক করা হয়েছে? হ্যাঁ, গাড়িটা আটক করা হয়েছে, এখন গাড়ি বাইক দুটোটা থানা আছে। যার মৃত্যু হয়েছে নামটা কি বললেন? রাকেশ মিয়া। বয়স কত? বয়স 29 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ থাকতে। এমনিতে কি করতো উনি? বাড়িতে কাজ টাজ করতো, বাগান টাগান থাকতো মানুষের। শ্বশুর বাড়িটা কোন জায়গায়? শ্বশুর বাড়ি বন্ধু। পাইথাগো চাশালো পোস্টমর্টেম পাইমানি ইয়াগুলো নখুংনি বড় রকনি ইয়াগো ইয়াফারি রেজাকারা কেসমিয়ানি মাংকথৈ। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। शिकांगनि जलिलायमानि पाटिमुंनो कितिंगै फासाल हर पुखिरिनि दैयाव बिथेलु खलायरो मानिबाय थै थांबायखा पुखिरिनि बेबा कतर चिकन आ पाटिमुंगो सुब्रत नमशुद्र मुंगै खरकसा बरकनि साकाव कक्सिल जामुंति साका नखवां बिसजित नमशुद्र पाटिमुं खवाय थानानि उत्तर सिंगिसरा आमसायो। জলের মধ্যে বেতাটা বন্ধ দিচ্ছে। এই সাইডটাই বন্ধটা। আর ডালে স্যার, আর ডালে ডালানো লাগতো না। এই এখানে পড়ে চল, এখানে পড়ে। शिकांगनि जलिलायमानि पाटिमुंनो कितिंगै फासाल हर पुखिरिनि दैयाव बिथेलु खलायरो मानिबाय थै थांबायखा पुखिरिनि बेबा कतर चिकन आ पाटिमुंगो सुब्रत नमशुद्र मुंगै खरकसा बरकनि साकाव कक्सिल जामुंति साका नखवां बिसजित नमशुद्र पाटिमुं खवाय थानानि उत्तर सिंगिसरा आमसायो। कक्तमानि बिसिंथि साइमांखा सुब्रत नमशुद्र मुंगै अबरक शिकांगनि सिमिनो बिसजित नमशुद्र बाय खा खेगलायजाक दंमानि आबनि बागै वाइरे वाइ बिसजित नमशुद्रनि नक्सबाय सुकुरुब खलायमानि लगे लगे बिनि बुमा बुफानोबो बुतक खलायमानि कक्तमा आबनि लगे लगे बनो लामाव कारिनाय सालसा हनिबो दामरक मुंगरखा सुब्रत नमशुद्र मुंगै अबरक फियाबा शिकांगनि जलिलायमानि तंमानि बाय सुब्रत नमशुद्र फासाल हर बिसजित नमशुद्रनि पुखिरिनि दैयाव बिथेलु खलायरो मानिबाय थै थांबायखा पुखिरिनि बेबा कतर चिकन आ पाटिमुंनि तै दिन सालाव पुखिरिव आ थैजाक नगै अ आ थैमानि उलकलग सुब्रत नमशुद्रनि न याक्तंग हनै सामिमांखा बिसजित नमशुद्र। আমার নাম বিশ্বজিৎ দাস, আমি উত্তর সিংহচরের একজন বাসিন্দা। আমি আজকে সকালে আমি মাছের ব্যবসা আছে এমনিতে আমার। আজকে সকালে আমি মর্নিং করতাম বাড়িছি, একজন আমার ডাক দিয়ে কইতেছে তোমার পুকুরে লেখা দাও মাছটি কি হয়েছে। আয়া দেখি আমার পুকুরে বিষ দিছে। তো ইহা কয়েকদিন ধরে যে বিষ দিছে কয়েকদিন আগে আমার বাড়িতে বিকাশের আমার মারে মারছে, আমার বউরে মারছে। কি নামটা? হ্যাঁ, সুব্রত দাস, স্যার উত্তর সিংহচরের বাড়ি। বাবার নাম হচ্ছে নিরঞ্জন দাস। ওখানে কয়েকদিন আগে আরেকটা ঘটনা করছে, যেখানে পাই এখানে আমার বকাবকি করে, আমার বলে রাস্তার ফকির বানাই লাগবো, আমার দীক্ষা দিব, আমি কেমনি ব্যবসা করি আমার দেখবো। ওই তো আজকে সকালে রাত্রেবেলা বিষ দিয়ে দিচ্ছে আমার পুকুরের ভিতরে, প্রায় 1.5 লাখ টাকার উপরে মাছ নষ্ট করছে আমার। ঘটনাটা করছে, হ্যাঁ আমি ওখানে সুষ্ঠু বিচার চাই, আর আমি থানাতে অভিযোগ করুম এর নামে, কারণ হ্যাঁ প্রতিনিয়ত আমার এইভাবে হেনস্থা করতেছে। आबनि यागुलो कक्तमा थुमनाय रकनि सिंपिनिक मुंगो बिसजित नमशुद्र शाखा
सिगांनि सिमि खाखेख्लायै जरेलाय मानि तंमानि बागैनो सुब्रत नमस्सुद्र बिनि पुखिरिव बिथि लुख्लायै आबथारो हनै अ आ थैमारकनि हातिदर लाख कायसाहाय अंनाय हनै साका बिश्वजित नमस्सुद्र पाइथागो सुब्रत नमस्सुद्रनि मुंगै थानाव थांगै एफआईआर खालायनाय हनै साका आ थैजानाय बिश्वजित नमस्सुद्र खवाइनि सिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां सिकांगो जरा खाजाक तंमानि हाइके चाशल राजखरा आगुलिनि दशरथ देव ऑडिटोरियम हल नको खलाइजाखा आईपीएफटी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जॉइंट कन्वेंशन पांडाव मानजाखा एनएफएनएस नि प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष तामांग जनरल सेक्रेटारी एस सनियाल वाइस प्रेसिडेंट निक मनचंद्र माराक आईपीएफटी नि हास्ते आसुफांग प्रेम कुमारिया तांगफांग स्वपन देबर माते तांगफांग याकचु मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया वन नेशन मेनी स्टेट नो डिप्रालेन नो रेस्ट अकक बर्थमानो बसकांगो तनै शिकांगो जरा खाजाक तंमानि हाइगे चाशल राजखरा आगुलिनि दशरथ देव ऑडिटोरियम हल नको खलाइजाखा आईपीएफटी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि सालसानि जॉइंट कन्वेंशन पांडा जाति कथार मसंगै कन्वेंशन पांडानो चेंसावै रेखा नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष तामांग पांडाव मानजाखा नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जनरल सेक्रेटारी एस सनियाल वाइस प्रेसिडेंट एबा गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि डेपुटी सीईएम निक मनचंद्र माराकते एनएफएनएस नि सिक्किम नि आदं सुदीप प्रधान विदर्भ राज्य अदालि नि वर्किंग प्रेसिडेंट नीरज खंडेवाले एनएफएनएस नि फॉर्मर प्रेसिडेंट एबा सुप्रीम कोर्ट नि सीनियर एडवोकेट पी नीरव रेड्डी न खबै एनएफएनएस नि गुबुन अजमारक अब हाइकेन कन्वेंशन पांडाव आईपीएफटी नि बुखाक्तै मानजाखा आईपीएफटी नि हास्ते आजुफांग प्रेम कुमारियां तांगफांग स्वपन देबरमा तांगफांग याकचो मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमतिया स्पोक पर्सन एडवोकेट अमित देबरमाते एजीएस बुदु देबरमा न खबै गुबुन अजमारक पांडाव ककनारखा आईपीएफटी नि हास्ते आजुफांग प्रेम कुमारियां तांगफांग स्वपन देबरमाते तांगफांग याकचो मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया पार्टी आईपीएफटी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट वही सालसानि सेमिनार सेमिनारो फाइमानजों फैका नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट ने प्रेसिडेंट श्री प्रशांत तामांग जी फाइहा जनरल सेक्रेटरी श्री एस सनियाल जी सीनियर एडवोकेट तथा हमारी त्रिपुरा में 2019 जब कुंभलम में स्टेट लेवल स्टेटहुड डिमांड गैदरिंग हुआ था उस समय भी हमारे सभी त्रिपुरावासी ट्राइबल जनजातियों को उनका अधिकार उनका भविष्य जो लड़ाई हो रहा है तो हमारी आदिवासी जनजातियों को और हमारी पार्टी को बहुत विश्वास के साथ हिम्मत दिए थे। तो आज भी हमारी श्री नेहरू दीदी जी अभी स्टेज पर उपस्थित है। तो सारे लीडर्स हर स्टेट का जो स्टेट डिमांड में अभी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट में जुड़े हुए हर स्टेट के हमारे लीडर्स हो तो स्टेज आचमनाई श्री पार्टी ने श्री जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट तो श्री मिनिस्टर तथा पार्टी ने एसएन जनरल सेक्रेटरी तो आईडब्ल्यूएफटी ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो आदम जो यूथ आईपीएफटी तो जो चीनी एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट तो हाउस तो नाई जो चीनी लीडर्स तो जी काकोबुको जो तो नो तेरी कॉन्फ्रेंस बा सांसद सेमिनार हो पहला निश्चित पाइथाक जराबो जों डिसिप्लिन
नारक लायो हासल सामफा थांनानै तंनानै समस्या आंनाय हियाबा जरावो जों चेंलायमाय लायलिया किसा लेटन हा हायफोनो जों नाके तंनानै बागै थांमाय आरो तंनानै बागैबो जों व्यवस्था खायनाय आबानि बागै जों थांनानै उराउरि जाहाथे नोंनि आंथं तो पहिलानि सिमी पाइथाल जरावो और सालसाली सेमिनार न तंग गोजांनि बिसिंथै जतो पांडानो फार्स्ट लास्ट खब जाके थांनानै बागै नरावनि थाखाय काबावमो तेईसो मास अफियो हमारी पार्टी IPFT 2009 4 तारीख मार्च पहले ये पार्टी का फाउंडेशन थे। आज से 14-15 साल हुआ तो एक्स दिन ये हमारी पार्टी त्रिपुरा का आंचलिक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी था। लेकिन जब 2021 में हमारे पास त्रिपुरा के महाराज श्रीमान प्रद्युत किशोर देव वर्मा जी उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड को लेके हमारे जनजातियों का जो IPFT पॉलिटिकल पार्टी हमारी जनजातियों का सोशल इकोनॉमिक कल्चर लैंग्वेज और हमारे आइडेंटिटी हमारी पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए जो सेपरेट स्टेट की डिमांड में था उसको ओवरकम करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के नाम पर पार्टी को पूरा आशालनि कन्वेन्शन पान्डाव खाना थथके जादु कलेज आरो जाबै खाना रखा IPF तिनि खरक साबु खोगजोब तागले तागरो तागयो तोखो कानाले तागो कानायो तोखो ओ जादू सुनो अब हाइकेन आसामनि कन्वेन्शन पान्डाव ककनारखा नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष तामाङ सेक्रेटारी एस सन्याल वाइस प्रेसिडेंट एबा गारो हिल्स अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि डेपुटी CEM निकमन चंद्र माराक आकर्षण नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स तैयार ही इसलिए हुआ है कि छोटे राज्यों की मांग करने वालों की मांग किस तरीके से सरकारी महकमे में पहुंचाया जाए, यानी कि दिल्ली पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्य बनने का जो कार्य है वो दिल्ली में होता है, यहाँ नहीं। फेडरेशन में बोडोलैंड की इकाई है, गारोलैंड से हमारे निकमन मरक जी आए हैं, आप लोग तो हैं ही, साथ में हम विदर्भवादी भी हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं। यहाँ तक कि आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि लद्दाख से भी लोगों की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, उसको लेकर
नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स लड़ रहा है। बाकी सब वक्ताओं के भाषण से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आया होगा कि छोटे राज्य की मांग ये दिल से जुड़ी हुई मांग है, ये हर एक इंसान के दिल की मांग है। ये मांग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, ये मांग हर स्टेट के खुद के ऑटोनॉमी की मांग है। आप लोगों को इससे पहले के वक्ताओं ने यह समझाया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की तरफ से, NFNS की तरफ से मैं आज अपने इस भाषण में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्रिएट ही इसीलिए हुआ है, तैयार ही इसीलिए हुआ है कि स्टेट्स की पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स के डिमांड्स हो उसको लेके आगे चले। और इस राह में IPFT की जो डिमांड है सेपरेट त्रिपुरालैंड स्टेट की, वो NFNS के बड़े करीब की डिमांड है और उसको लेकर NFNS हमेशा तटस्थ रहा है और आगे चल के भी रहेगा। IPFT का जो पिछले कुछ सालों से जो उसकी जो चाल रही है उसको देखकर NFNS ने बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक निरूप जी हैं, वो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे आगे का मार्ग क्या होगा, वो हमेशा बताते रहते हैं और हम उनसे सीख लेते रहते हैं। उसी सीख के दौरान हम लोगों को इस बात की समझ आती है कि भारतवर्ष सरीके इस बड़े देश में 8-10 अगर नए राज्य तैयार हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है, जबकि हर राज्य का डिमांड करने वाला IPFT हो या गारोलैंड डिमांड करने वाले हो या मणिपुर में कुकीलैंड डिमांड करने वाले हो या बुंदेलखंड डिमांड करने वाले हो, सबकी मंशा यही है कि हमारा एक सेपरेट राज्य तैयार हो जाए जो हम हमारे तरीके से उसको चला सकें, कानून को ध्यान में रखते हुए। और ये डिमांड जो है, ये डिमांड हर क्वार्टर में आप देखेंगे, हर जगह से आप देखेंगे तो कानूनी तरीके से की जा रही है। किसी ने आज तक कानून हाथ में नहीं लिया है। और चूंकि ये कानूनन मांग है, हम आज यहाँ जो उपस्थित हैं लोग, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स को और उसकी सारी इकाइयों को ये मकसद पूरा करने के लिए मदद करें। मदद इसलिए क्योंकि कोई भी काम बगैर एक दूसरे के मदद से होता नहीं है। 5 उंगली अगर अलग रखें तो सारे अलग हैं, लेकिन मुट्ठी अगर बन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। यही कोशिश नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स की रही है, आगे भी रहेगी। और मुझे यकीन है कि IPFT का साथ हमको हर समय मिलता रहेगा और हम IPFT के डिमांड को, त्रिपुरालैंड के डिमांड को सही समय पर सही जगह पहुंचा सकेंगे। ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये आगे समय आपको बताए, समय ही आप लोगों को सबको बताएगा। लेकिन एक चीज हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, NS में
हम छोटे राज्यों के डिमांड को लेकर प्रतिबद्ध हैं, रहेंगे और हम ये देखेंगे कि त्रिपुरा लैंड में सूरज का उदय कब होता है। आप और हम दोनों मिलकर यहीं इसी जगह उस समय को भी याद करेंगे, इस समय को याद करेंगे और उस समय को सेलिब्रेट करेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। आगे और भी वक्ता हैं। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। अरे भारत एक है तो यहाँ के जो 51 शक्तिपीठ है इनकी वजह से एक है, उनमें से एक शक्तिपीठ आपके पास है। क्या भारत आपका जो त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ है, इसके बगैर भारत का स्पिरिचुअल मैप, आध्यात्मिक जो नक्शा है वो क्या कभी पूरा हो सकता है? इसी तरह अगर कोई शैवइट है, उनके 13 जो ज्योतिर्लिंग है उसके बगैर भारत नहीं बन सकता। उसी तरह अगर कोई वैष्णव है तो 108 दिव्य देश है, उनके हिसाब से 108 दिव्य देश है वैष्णव के लिए, उसके बगैर भारत नहीं बनता। ये कोई लीडर नहीं बनाया भारत को, ये सिद्धपीठ, ये शक्तिपीठ, ये ज्योतिर्लिंग और ये दिव्य जो देश है ये भारत को बनाया है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। प्रधानमंत्री अक्सर बोलते रहते हैं भारतवर्ष के बारे में, विष्णु पुराण को कोट करते हैं। अरे वो कोई कंसेप्ट है, इंडिया अभी नहीं बना, इंडिया बन रहा है, उसमें आपको और हमको दोनों को शामिल होना है। तेलंगाना बनने के बाद घर में नहीं बैठना है, त्रिपुरा लैंड के साथ रहना है, गारो लैंड के साथ रहना है, बोडो लैंड के साथ रहना है। हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो। देश कब मजबूत होगा, कब मजबूत होगा? वो स्लोगन को समझे, जब समझेंगे वन नेशन मेनी स्टेट्स। अंबेडकर 1947 में जब सेंटर को मजबूत बना रहे थे वो खामोश बैठे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन 1957 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, भाषा आधार पर स्टेट्स बने, अंबेडकर ने क्या कहा? नो, वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स। तेलंगाना जो बोली बोलता है, आंध्रा भी वही बोलता है, लेकिन एक भाषा के लिए 2 राज्य है। वन नेशन मेनी स्टेट्स, वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स, ये कंसेप्ट है। हालांकि हमने इंडिपेंडेंस से नारा दिया था, इससे पहले किसी ने जिक्र किया कि ये जो है इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया। सही बात, किस लिए बनाया, किसका इंस्पिरेशन था? जैसे और किसी ने कहा अगर अमेरिका 50 स्टेट हो सकता है तो इंडिया 50 स्टेट क्यों नहीं हो सकता? अरे ये ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं, ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था, Why can't India be 100 states का, not 50? लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। जब 2020 और 21 में जब कोविड आया, 3-4 किताब आए स्मॉल स्टेट्स पे, उसमें बहुत सारे लोग ये लिखा कि इंडिया में कोई भी स्टेट हो 2 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं रहना चाहिए, कोई भी स्टेट में। उत्तर प्रदेश का क्या आबादी है? 12 करोड़। 12 करोड़ का कोई स्टेट होता है? हमने देखा एमएलए एक दूसरे को कार्ड देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को नहीं पहचानते, विजिटिंग कार्ड देते हैं, मैं एमएलए हूं। अरे आप भी एमएलए हो, कहां बैठते हो? उसी सभा में बैठता है वो। 450 एमएलए, 250 एमएलसी। रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम में मैंने जजेस को कार्ड, एक दूसरे को कार्ड देते हुए देखा हूं। हम बैठे थे, प्लेन 95 तक तो प्लेन ही नहीं होता था इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए, ट्रेन से जाना पड़ता था। ट्रेन वहीं हम वेटिंग रूम में बैठे थे, वहां चीफ जस्टिस साहब दूसरे से पूछ रहे थे आपका परिचय, उन्हीं के कोर्ट में जज है वो, लेकिन बैठता लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में 40 जज इलाहाबाद में बैठते तो 30 जज लखनऊ में बैठते, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। इस तरह का राज करोगे? जैसे हमारे नीरज भाई बोल रहे थे 900 किलोमीटर तेलंगाना आंध्रा को अलग कर दिया, कोई उसमें कोई हमारे अलग होने के बाद क्या प्रॉब्लम से अलग बात है, लेकिन मैं ट्राइबल एरिया की बता रहा हूं। गोदावरी, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है, गोदावरी, और वहां के वह पूरा ट्राइबल एरिया है, उसको ले जाके यहां पर कम से कम 60-70 गांव को ले जाके आंध्रा में मिला दिया।
पहले जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 50 किलोमीटर होता था, आज जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 500 किलोमीटर जाना पड़ता है। ट्राइबल 500 किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर मुश्किल से जाता है, बस पकड़ के, ये पकड़ के, ऑटो पकड़ के, ये पकड़ के। 500 किलोमीटर कैसे जाएगा? अगर वहां बाढ़ आ जाए किसको बोलेगा? तो इस तरह के कई समस्या हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, बहुत सारे वक्ता हमसे पहले बोले हैं, बहुत कवर किया उन्होंने, लेकिन एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एज ए रिस्पॉन्सिबल लॉयर, मैं बोल रहा हूं कि हम सब मिलके ये डिमांड करना चाहिए, स्टेट फॉर्मेशन का गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होना चाहिए, एक परमानेंट। जैसे आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठा के पूरा विभाजन किया स्टेट का, कंट्री, देश का, उसी तरह एक परमानेंट कमीशन रहने दो। जब जिला बढ़ते हैं तो स्टेट्स क्यों नहीं बढ़ना? तो क्या देश से अलग होना चाहते हैं क्या वो लोग? देश में रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, उनका अस्तित्व है, एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कायम कैसे होगा? अगर त्रिपुरा लैंड नहीं बनता, ये मान के चलो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा लैंड विल हैव नो आइडेंटिटी, क्योंकि आपका जमीन नहीं है। आपका जमीन में भी दूसरे लोग आके बैठेंगे, बाहर से आके बैठेंगे, या देश के अंदर दूसरे इलाकों से आके बैठेंगे, आपका ना अस्तित्व रहेगा ना आइडेंटिटी रहेगा। तो इट्स ऑल पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर गारोलैंड बनना है तो क्राइटेरिया क्या? अगर बोडोलैंड बनना है तो क्या क्राइटेरिया? त्रिपुरा लैंड बनना है तो क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया ही नहीं है। आपने 2002 में, जैसे नीरज ने कहा, जब कभी कोलिशन गवर्नमेंट है वो बात सुनता है, नए स्टेट का डिमांड का बात सुनता है। इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि 1999 में बीजेपी ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन पास किया कि हम तेलंगाना बनाएंगे। कब? 1999 में। लेकिन 2002 में जब छत्तीसगढ़ बन रहा था, झारखंड बन रहा था और उत्तराखंड बन रहा था, तेलंगाना नहीं बना, और क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं किया। ओके, तेलंगाना बन गया, किस क्राइटेरिया पे तेलंगाना बना? अगेन नो क्राइटेरिया। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पिछले महीने ये हियरिंग में आया है। मैं चाहूंगा मुनीष तामंग और काबिल सीनियर एडवोकेट हमारे साथ है आने विदर्भ के, ये लोग इस केस में शामिल होके, हम ऑलरेडी है उसमें। तेलंगाना बनने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि क्राइटेरिया फिक्स करो। 2002 में 2002 नहीं, 2000 में बना छत्तीसगढ़, 2002 में क्राइटेरिया नहीं फिक्स हुआ। तेलंगाना 2014 में क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये मामला पिछले हफ्ते हियरिंग में आया, उन्होंने कहा शायद कश्मीर मैटर में कुछ निकलेगा, तब तक रुक जाओ। हर एक के प्रॉब्लम्स है। किसी और ने कहा लद्दाख बन गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, लेकिन वहां का प्रॉब्लम्स क्या है मालूम है? आज के दिन जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में था, वहां के 4 एमएलए होते थे, 1 मिनिस्टर होता था, 1 एमपी होता था। आज के दिन नो एमपी, नो मिनिस्टर, नो एमएलए। किसके पास जाना भाई? गवर्नर के घर में कोई घुस सकता है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में कोई घुस सकता है क्या? और 6000 करोड़ का बजट है, कैसा खर्च करेंगे? किस पे खर्च करेंगे? और वो जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां का रीत रिवाज ही नहीं जानता वो लद्दाख का। लद्दाख में बसना, लद्दाख में एक दिन बिताना कोई मजाक की बात है क्या? टूरिस्ट बन के जाओ, एक दिन तो एक्लिमेटाइजेशन में जाएगा आपका, फिर कब समझोगे इसको, पैसे को कैसे खर्च करोगे? इसलिए वहां भी जितने पॉलिटिकल पार्टी है सब आउटडेटेड हो गए। आज के दिन लद्दाख का लीडरशिप एक स्कूल टीचर के हाथ में गया, वांगचुक, पूरा नाम नहीं जानता मैं, पूरा नाम सोनम वांगचुक। अभी वो बर्फ पड़ रहा था और वो धरना पे बैठा, 20,000 लोग उसके साथ बैठे। दिल्ली आया, फिर इसी तरह का बीट, ये सब हो गया। लेकिन मैं 2-3 बात करके छोड़ देता हूं, बिकॉज ऐसे हम बात करते रह सकते हैं। जब त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ तो हम इसको काफी नजदीकी से हमने इसको स्टडी किया, क्योंकि पहले जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था त्रिपुरा करके, वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया, त्रिपुरा मोता बना। आईपीएफटी वैसे ही है। हम चाह रहे थे कि दोनों एक जगह होता तो ठीक होता, लेकिन जो भी हो, पॉलिटिक्स अपने हाथ में नहीं होता।
एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद में वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। जैसे सान्याल साहब इससे पहले बोल रहे थे, वहां भी हमने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बना। अभी तेलंगाना में भी हमारा प्रॉब्लम वही है। तेलंगाना हमको कोई घर बैठे लाके नहीं दिया, जरूर पार्लियामेंट में बना है, लेकिन जिस दिन एक हमाली एक दिन 300 रुपया कमाता है, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो एक दिन में 3 लाख कमाता है, जब हम दोनों लोग एक आवाज में काम छोड़ के तेलंगाना के लिए मांग किया तो तब तेलंगाना बना। एक हमाली को और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को सड़क पे आके एक बनना पड़ा, एक आवाज उठाना पड़ा, तब चल के तेलंगाना बना। दूसरा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितना है, जब कांग्रेस पार्टी का आदमी, टीआरएस का आदमी, जितने प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर, लॉयर, हमाली, सब, और एक नक्सलवादी गद्दर, जब आपसे इससे पहले प्रलय जो अभी गा रहे थे, उनको देखने से मुझे गद्दर याद आया। 1 महीना भी नहीं हुआ, गद्दर गुजर गए, और उनका जो ऑपरेशन किए वो डॉक्टर भी यहीं बैठे हैं। जितना उनको, जिस दिन गद्दर गुजर गए, इस डॉक्टर को जो हजारों ऑपरेशन किए होंगे, मैंने कभी उनके सूरत पर दुख नहीं देखा, क्योंकि उनका प्रोफेशनल काम है। उनका 3 ब्लॉक थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, रिकवर हो गया। वो नर्सेस को पकड़ के हॉस्पिटल में, दूसरे पेशेंट्स को पकड़ के, डॉक्टरों को पकड़ के फिर गाना लिखना शुरू कर दिया था। एक दिन ये काम किया, दूसरा दिन उनका लंग इन्फेक्शन हो गया, वो गुजर गए। कहने का मतलब यह है, एक नक्सलवाद को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी छोड़ के उनको भी जय तेलंगाना बोलना पड़ा। एक ही भाषा, कांग्रेस के हो, टीआरएस के हो, नक्सलवादी हो, कोई भी प्रोफेशन के हो, जय तेलंगाना, तब चल के तेलंगाना बना। ऐसे ही नहीं बना तेलंगाना। कांग्रेस पार्टी के कारण अलग होंगे, आपको सिर्फ तेलंगाना के 20 सीट पे आपका नजर था, इसलिए आपने तेलंगाना बना दिया। वो 20 नहीं, एक भी सीट नहीं आया। इसी तरह इससे पहले आप YouTube में, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपका हिस्सा इसलिए हूं, आप YouTube में जाके देखो, 2018 में हमने कुमलुग में जो स्पीच दिया, वो आज तक नहीं हटता YouTube से। मैंने उतने देखने वाले हैं। मुझे कभी कभी सुन के मुझे शर्म आता है, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को आसमान पे उठाया था उस स्पीच में। कभी कभी मुझे शर्म आता है, जितना उनसे हमने उम्मीद किया, उन्होंने वो उम्मीदें पूरा नहीं किया। जिस दिन मैं बात कर रहा था, कब था वो? 23 अगस्त 2018। पब्लिक का, तेलंगाना में पब्लिक का मूड मुझे मालूम था। तेलंगाना में 11 सीट है पार्लियामेंट के। असेंबली का इलेक्शन दिसंबर में हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ अप्रैल 2019 में। असेंबली में 1 सीट आया, पार्लियामेंट में 6 सीट आए। तो हम समझे ये आदमी जो है तगड़ा आदमी है, और ये देश के जितने भी मसले हैं वो पूरा जो है हल करेगा। लेकिन देश के मसले छोड़ के G20 के पीछे पड़ गए। मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैं गोवा में था, मैं बोल रहा हूं, हर एक गांव में गोवा का गांव क्या होता है इस देश जानता ही नहीं है। गोवा का गांव, मैं किसी प्रॉपर्टी खरीदने गया, उसका एक भी कागज के लिए मुझे गांव छोड़ना नहीं पड़ा। मैं पूछा, गांव इतना मजबूत कैसे है? उन्होंने कहा, अरे भाई 500 साल से है। गांव को वो लोग कमुदाद कहते हैं। कमुदाद इतना पावरफुल है कि हर एक डॉक्यूमेंट गांव में मिलता है। इससे पहले नीरज ने कहा गढ़चिरौली किधर, मुंबई किधर, लेकिन हम लोग हर एक लेवल पे, गांव के लेवल पे, स्टेट लेवल, जिस लेवल पे हम हैं, हमको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। ये नव भारत के निर्माण के लिए लड़ना पड़ेगा। नव भारत निर्माण तभी होगा जब नव राज्य होंगे। उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए, वो क्राइटेरिया के लिए लड़ेंगे। एक बात कह के मैं छोड़ देता हूं, फॉरेस्ट एक्ट आया। फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद सब लोग एप्लीकेशन दे दिया, हमको कस्टमरी राइट है। तो एक गांव है गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली है विदर्भ में, लेकिन हमको लग के है आदिलाबाद जो तेलंगाना का एरिया है। जैसे नीरज ने कहा
हमको छत्तीसगढ़ नजदीक है। आई एम टेलिंग यू, ब्रिटिश इंडिया में नागपुर का बेहतर कनेक्टिविटी था और आज आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर। न प्लेन का कनेक्टिविटी न ट्रेन का कनेक्टिविटी। कभी हम काम पे जाते हैं, अगर जबलपुर एयरपोर्ट अगर किसी कारण बंद है तो नागपुर में उतर के 10-11 घंटा ट्रेन इससे जाना पड़ता है, कार से। वहां हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मालूम। ये समझते कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में। और कैसे पहुंचेगा वहां अगर हवाई अड्डा काम नहीं कर रहा तो। आदिलाबाद में कैपिटल, कौन सा जगह कैपिटल होना चाहिए, दो क्राइटेरिया है। अस्पताल के लिए कहां जाते हो और शादी का सामान खरीदने के लिए कहां जाते हो, जहां जाते हो वही आपका कैपिटल है। अगर नागपुर से आपको हैदराबाद नजदीक पड़ता है, वही कैपिटल है आपके लिए, ना बंबई नहीं है। सो इसी तरह मेंढा लेखा गांव जो है वो एप्लीकेशन दिया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, उनको कस्टमरी राइट मिला। क्या राइट मिला? 5000 एकड़ का रिजर्व फॉरेस्ट मिला। पहला साल उन्होंने बंबू बिक्री किया तो 3 करोड़ आया गांव में। वो गांव में है कितने? 70 फैमिली है, 500 उनका आबादी है, दैट इज पॉपुलेशन 500 लोगों का। तो हम गए उस गांव में और गांव के एंट्रेंस पे क्या लिखा है? मुंबई में हमारा सरकार, नहीं, दिल्ली में हमारा सरकार, मुंबई में हमारा सरकार, मेंढा लेखा में हम सरकार। जिस दिन ये हर एक गांव में ये बात निकलेगी कि इस गांव में हम सरकार, जैसे गोवा के हर एक गांव में उनका सरकार है, मेंढा लेखा में वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार है उनके गांव में। इस तरह का फीलिंग जब आएगा तभी हम एक नया भारत बना पाएंगे। मजबूत भारत बनना है। मैं जैसे कहा, भारत अभी नहीं बना। हम लोग कहते हैं आर्टिकल 1 में, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज नॉट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज ओनली ए यूनियन ऑफ टेरिटरीज। यूनियन ऑफ स्टेट्स बनना है। अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनना है तो सेंटर को और स्टेट को दोनों को जिम्मेदारी बांटना है। यू कांट डू बॉसिज्म फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का राज नहीं चलेगा। यहां का जो सत्ता है दो सेंटर्स पर टिकेगा, 2 पिलर पर टिकेगा। वो 2 पिलर है सेंटर और स्टेट। हमारे दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं। यूनियन लिस्ट आपका है, स्टेट लिस्ट हमारा है और कंकरेंट लिस्ट दोनों का है। जब तक इंडिया फेडरल नहीं बनेगा, एक और बात कह के मैं छोड़ देता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आईपीएफटी बीते 2-3 साल में जो क्राइसिस के समय में था, वो क्राइसिस के घड़ी को आईपीएफटी ने पार कर दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस क्राइसिस के समय में हमें विश्वास था कि आईपीएफटी का जो लीडरशिप है वो चाहे इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ क्यों ना हो, मगर वो फेथफुल हैंड्स में है, वो विश्वासी हाथ में है। और इनका जो, जैसे शुक्ला जी ने भी बताया कि इनका जो समर्पण है, एनसी देव वर्मा साहब ने बताया था, इंस्पायर किया था कि अगर तुम लोग फेथफुली लगे रहोगे, विश्वास पूर्वक तुम लोग लगे रहोगे, विश्वास योग्य होकर लगे रहोगे, तो आज चाहे तुम्हें कम लगे, आज चाहे उतार का समय हो, मगर ऐसा समय आएगा जब तुम्हें सपोर्ट करने वाले फिर से बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे। एनसी देव वर्मा साहब ने कहा, ये बहुत ही सत्य वचन उन्होंने कहा, सच वचन उन्होंने कहा। और आज उसी वचन में लगने के कारण आज देखिए आईपीएफटी का साथ देने के लिए केवल यहाँ त्रिपुरालैंड के लोग ही नहीं, परंतु आज हम इतने दूर दूर से, हैदराबाद से, विदर्भ से, दार्जिलिंग से, सिक्किम से, आसाम से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। हम आपके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आए हैं, आपका मुद्दा के साथ और आपके पार्टी के साथ। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में ये आईपीएफटी के द्वारा ही त्रिपुरालैंड का जो सपना है, त्रिपुरा लोगों का जो सपना है, वो आईपीएफटी के द्वारा, इस एबल लीडरशिप के द्वारा पूरा होगा, ऐसा हम पूरा विश्वास करते हैं। हमने इसी विश्वास से व्यक्ति के ऊपर नहीं परंतु आईपीएफटी के ऊपर विश्वास करने के कारण जब दार्जिलिंग में हमारा कन्वेंशन हुआ था आईपीएफटी एनएफएनएस का, तब एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने आईपीएफटी को दिया था और शुक्ला जी को हमने, मिनिस्टर को हमने ट्रेजरर बनाया था। मगर बीते कुछ दिनों में ये उतार चढ़ाव का घड़ी तो ऐसे ही चलता रहता है, हर एक जीवन में भी कभी उतार कभी चढ़ाव।
अभी हम सुबह निकले धूप था, आगे तो इधर बारिश था, ऐसा चलता रहता है। तो इसमें घबराना नहीं हमको, डरना नहीं हमको, हिम्मत नहीं हारना है। बीते दिन में ये आईपीएफटी का नॉमिनी जिनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, उसने आईपीएफटी छोड़ दिया, आईपीएफटी के साथ वो नहीं रहे। इसलिए हमने डिसाइड किया है, और आपके साथ एक खुशखबरी मैं शेयर करने में मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने जो आईपीएफटी का जो वेकेंट पोजीशन था, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट निकमान मराक जी हैं जो गारोलैंड के सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, और एक दूसरा पोजीशन जो वेकेंट पोजीशन था, हमने उसमें डिसाइड किया है कि हमारे शुक्लाचरण नेहता जी को हम लोग एनएफएनएस का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट करेंगे। ये हमारा उनके ऊपर जो विश्वास है, उनके ऊपर जो हमारा कॉन्फिडेंस है, इस बात का ये सिंबल है। और हमें पूरा विश्वास है कि शुक्लाचरण नेहता जी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएफटी में, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में, एनएफएनएस में, और हमारे साथ भी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे जिम्मेदारी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। उनके साथ साथ ये हमारे जो लीडरशिप में इस समय है आईपीएफटी में, प्रेम कुमार रियांग जी और अन्य हमारे साथी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब हमारे पुराने साथी लोग हैं, और हम सबको हमने देखा हुआ नज़दीक से। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग के एबल लीडरशिप में आईपीएफटी बहुत उन्नति तरक्की करता जाएगा। जब पिछले इलेक्शन जब हुआ था, तब निरूप जी यहाँ आए थे इलेक्शन के टाइम में। वो चाहते थे कि यहाँ एक तो इलेक्शन को थोड़ा स्टडी करें, नज़दीक से देखें, दूसरा साथी से मिलना चाहते हैं। आके उन्होंने उस समय शुक्ला जी को खूब फ़ोन किया, मैंने नंबर दिया था उनको, बोला था आप शुक्ला जी से मिलिए, मगर उस समय आप कैंपेन के टाइम में बिजी थे, वो मिल नहीं पाए। मुलाकात शुक्ला जी कहीं रिमोट एरिया में कैंपेन कर रहे थे। फिर उसके बाद रिजल्ट आया और शुक्ला जी ने फ़ोन किया और शुक्ला जी ने बताया हमें कि हम जीत गए, हम एमएलए बन गए, और शुक्ला जी भी आ गए। कितनी अच्छी बात है, आप ये कहानी सुना रहा था। तो शुक्ला जी से पता चला कि वो एमएलए सीट जीत गए। आपको याद होगा शुक्ला जी, मैंने कहा था उसी शाम को, शुक्ला जी आप मंत्री बन जाएंगे, और अगले दिन शुक्ला जी का फोन आ गया फिर कि हम कैबिनेट मंत्री बन गए करके। उसी प्रकार से आज हम आपको कह रहे हैं कि ये त्रिपुरा लैंड का सपना भी आईपीएफटी के लीडरशिप में, प्रेम कुमार रियांग के लीडरशिप में, शुक्ला नेहता के लीडरशिप में और आईपीएफटी के संपूर्ण लीडरशिप के में, ये त्रिपुरा लैंड का सपना भी जरूर पूरा होगा। मैं आज आके आपको कहना चाहता हूं, आज हम यहाँ दोनों चीज को सपोर्ट करने आए हैं। त्रिपुरा लैंड के मुद्दा को सपोर्ट करने आए हैं, और आईपीएफटी को भी हमारा एज एनएफएनएस का पार्टनर के रूप में हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। और हमारा ऑल इंडिया का सॉलिडारिटी हम आपके साथ एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। मुझे पता है कि आप लोग भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, सभी उतार चढ़ाव में, सभी समय में आप लोग हमारे साथ रहे हैं, और यही हमारा पार्टनरशिप कायम रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जैसे प्रोफेसर राधाकृष्ण ने कहा, ये हम भी अपने आप को फेडरेशन कहते हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स अ फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। वी आर हियर इन अ वेरी फेडरल स्पिरिट। वी सपोर्ट ईच अदर इन अ फेडरल स्पिरिट। वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इश्यूज इन अ फेडरल स्पिरिट। और हम भी आज यहाँ पर फेडरल स्पिरिट में आए हैं। आप भी फेडरल स्पिरिट में कर्नाटका से आए हैं, निरूप गारू भी आए हैं, विदर्भ से भी आए हैं, सभी जगह से हम लोग आए हैं। हमारा अपना अपना मुद्दा है, बट वी आर अ फेडरेशन, वी आर अ नेशनल फेडरेशन। तो इसी फेडरेशन में इक्वल पार्टनरशिप के भावना में, बराबरी का पार्टनरशिप, ये तो हमको ऐसी जिम्मेदारी में किसी को प्रेसिडेंट, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी ऐसा नाम दिया है, मगर हम सब बराबर के हैं, हम सब बराबर पार्टनरशिप में हैं। और इसी बराबर के पार्टनरशिप में कंधे से कंधा मिलाकर जितना हम गोरखालैंड के लिए हम जितना कंसर्न है, गोरखालैंड हमें जितना प्रिय है, उतना ही प्रिय हमारे लिए त्रिपुरा लैंड भी है। और वैसे ही हम भी मानते हैं कि जैसे आपके लिए त्रिपुरा लैंड प्रिय है, वैसे ही आपके लिए गोरखालैंड भी उतना ही प्रिय है। हमारे लिए गारोलैंड, विदर्भा सब हमारे लिए प्रिय है। आज हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर नहीं आ पाए, बुंदेलखंड से नहीं आ पाए, हमारे लद्दाख से नहीं आ पाए, और बोडोलैंड के साथी हमारे आ रहे हैं, मगर चाहे वो आए ना आए, सभी ने सॉलिडारिटी का मैसेज आपको भेजा है, और हम भी यहाँ से सॉलिडारिटी का मैसेज सबके लिए भेजते हैं।
इंडिया में जितने भी अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी अपने आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के लिए आज हम NFNS के इस मंच से सॉलिडारिटी डिक्लेयर करते हैं। उन सब के लिए हम सॉलिडारिटी बताते हैं, क्योंकि जैसे प्रोफेसर राधाकृष्ण ने कहा, भारत माता अपने बच्चों में ही रहती है, भारत माता अपने प्रजा में ही रहती है, और जब तक प्रजा मजबूत नहीं होगा तब तक भारत माता मजबूत नहीं होगी। अगर प्रजा कमजोर है, प्रजा गरीब है, प्रजा दुखी है, तो भारत माता भी दुखी रहेगी। हमारे इस देश में हम देखते हैं कि हमारा देश बड़ा तीव्रता से अपने आप को एक सुपर पावर ताकत बनाने में लगा हुआ है, मगर हमारा संदेश यही है, जब तक इंडिया का लास्ट आदमी कमजोर है तब तक इंडिया भी कमजोर रहेगा। जब तक इंडिया का लास्ट प्रांत कमजोर है तब तक इंडिया कमजोर रहेगा। इंडिया को अगर ताकतवर बनना है तो इंडिया का हर एक आदमी, हर एक प्रांत, हर एक राज्य और हर एक आइडेंटिटी को मजबूत होना होगा, तभी इंडिया भी प्रॉस्पर करेगा। जब तक सब लोग प्रॉस्पर नहीं करेंगे तब इंडिया प्रॉस्पर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें सभी का मजबूती ही देश का मजबूती है। इसमें सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। इससे हम चाहते हैं, हम देश को यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस फेडरल स्ट्रक्चर में हम सभी को मजबूत होना है। हमारा नारा है वन नेशन। हम मानते हैं एक देश है, हम मानते हैं कि भारत की अखंडता को हम पूरा विश्वास करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि नया राज्य बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि नया राज्य बन सकता है, और हमें पता है कि एक नया राज्य का मांग हमारा जायज मांग है, जेन्युइन मांग है, लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, बिल्कुल ठीक मांग है। इस चीज को हम जानते हैं। हम एक देश को मानते हैं, मगर एक देश में मेनी स्टेट्स को मानते हैं। हमारा नारा है वन नेशन मेनी स्टेट्स, क्योंकि सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन से ही वन नेशन बनेगा। सारे स्टेट्स के, सारे स्टेक होल्डर्स के स्ट्रेंथन होने से ही देश स्ट्रेंथन होगा। तो इसीलिए आइए हम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे को ताकत दें, एक दूसरे को मजबूत करें, अपने डिमांड को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को मजबूत करें, अपने आइडेंटिटी को मजबूत करें, और इस प्रकार से देश को और भारत माता को मजबूत करें। धन्यवाद, आप सबने ये मौका दिया, आपके पास आने का बहुत आपसे प्यार मिला, बहुत आपका स्वागत मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से पार्टनरशिप में आगे बढ़ने का पूरा विश्वास करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं रखता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अब हाइकेन कोकटिशालाव खलाइजाकनाय नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि एक्जिक्यूटिव मीटिंग कन्वेंशन पान्दानि पाइथाक फाइसिंगना जाखा कल्चरल प्रोग्राम एबा हुकुमु पान्दा राजाखरा आगुली निसिमी प्रबिननि कक्थुम चिनि खरां काइचुकु सानमुंगा डेपुटेशन रमानि जराव पंचायत सेक्रेटारि निथानि मुंसाफिरक मुंमानिया अंगै पाइथागो पंचायत टांगनकनि दगलाम दाला खाब्रै रेखा आमसानि रकरक आबो बाय पंचायत बिसिंगो चबजागै तंगानि नाखा कैलाशहर श्रीनाथपुर पंचायतनि सेक्रेटारि नखबै खरगब्रै स्टाफ काइचुकु सानमुंगनते ये चाशाला कैलाशहर श्रीनाथपुर पंचायतनि सेक्रेटारि नानु मियानि थानि डेपुटेशन रेनानि थांमानि आमसानि लुकुरक फियाबा आमसानि लुकुरकनि सुंमुंनि काइसा फिरक मुंफानो रेविमालिया पंचायतनि सेक्रेटारि नानु मिया आबुनि बागै बेलाय 32 जागलायका आमसानि लुकुरक पाइथागो पंचायतनि सेक्रेटारि नानु मियानो पंचायत टांगनक बिसिंगो चबै पंचायत टांगनकनि दगलाम दाला खाब्रै रेखा आमसानि लुकुरक आबो बाय पंचायत बिसिंगो चबजागै तंगानि नाखा पंचायतनि सेक्रेटारि नानु मिया खरकनि जिआरएस ते खरकसा क्लास 4 स्टाफ গত 25/7/2023 তারিখে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা গণডেপুটেশন দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা গেছে ওই দিন আমাদের পঞ্চায়েত সচিব এবং পঞ্চায়েতের কোনো স্টাফ পঞ্চায়েতে ছিল না। আমরা 8 দফা দাবি নিয়ে আমরা বিডিও মহোদয় এবং ডিও মহোদয়কে কপি দিয়েছিলাম। আমাদের পঞ্চায়েতের যে সমস্যাগুলো, যে কেলেঙ্কারি থেকে ধরে শুরু করে সমস্ত ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে যে ব্যাঘাত ঘটেছিল তার সুষ্ঠু তদন্ত করে এর ব্যবস্থা করার জন্য আমরা কপি দিয়েছিলাম ডিএম এবং বিডিও মহোদয়কে, কিন্তু এর কোনো সুরাহা আমাদের পঞ্চায়েতে হয়নি। আমাদের শ্রীনাথপুর পঞ্চায়েত থেকে আমরা বিভিন্ন সময় ডিএম বিডিও মহোদয়কে চিঠির মাধ্যমে লিখিত আকারে জানানোর পরেও শ্রীনাথপুর নিয়ে কোনো ইনকোয়ারি, শ্রীনাথপুর নিয়ে কোনো তদন্ত করা হচ্ছে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে আমরা আজকে 22/9/2023 তারিখে আমরা এলাকার জনগণ, এখানে কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি কেউ নেই, সর্বদলীয় যারা রাজ্যের কোনো পঞ্চায়েতে এরকম নেই। আমাদের পঞ্চায়েতে যেরকম জনগণ
একত্রিত রয়েছে। এখানে কংগ্রেস পাবেন, সিপিএম পাবেন, বিজেপি পাবেন, কিন্তু প্রত্যেকেই উন্নয়নের জন্য আজকে এখানে এসেছে। আমরা আজকে 9 দফা দাবি নিয়ে আমাদের এই গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা পঞ্চায়েত সচিবের নিকট কিছু দাবি তুলে ধরেছি। আমরা এই বিষয়গুলো বিডিও মহোদয়কে, ডিএম মহোদয়কে অবগত করছি, কিন্তু দেখা গেছে পঞ্চায়েত সচিবের সুষ্ঠু কোনো উত্তর দিতে পারেননি। তাই এলাকার সাধারণ জনগণ আজকে বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েতে তালা মেরে লক করে রেখেছে। যদি কোনো আধিকারিকরা আসেন তাহলে ওনারা আশ্বাস দেন আমাদেরকে, আমরা আইনের মধ্যে থেকে আমরা ওনাদেরকে তালা খুলে দেব। এবং আমাদের এই যে কাজগুলো, প্রথমত আমাদের শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যে অবৈধ রেজুলেশন হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য আমরা দাবি রেখেছি। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে বিডিও মহোদয়ের মাধ্যমে দ্রুত রেগার কাজ করতে হবে। আমাদের 2 নম্বর দাবি, আমাদের শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এনএক্সআর সি লিস্টে অনেকের নাম রয়েছে, আইডি রয়েছে, অথচ গড়গুলা দেওয়া হচ্ছে না। কী কারণে দেওয়া হচ্ছে না তা আমাদেরকে লিখিত আকারে জানাতে হবে। এগুলো দাবি রেখেছি আমরা। বিগত দিনে আমাদের পঞ্চায়েতে যারা গড় পেয়েছিলেন, ডেপুটেশন কোনো দলের নাম উল্লেখ না করে একটা চিঠি আমাদের দেওয়া হয়েছিল আজকে সময় চেয়ে। তো যথারীতি আমরা আজকে তাদের সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। ওদের দাবি দাওয়া যা ছিল আমরা সবগুলা রিপ্লাই দিয়েছি। হঠাৎ একজন উঠে বললো আজকে না আপনাদের তালা মেরে বন্ধ করে রাখা হবে বলেই সবাই বেরিয়ে গেল এবং হঠাৎ তালা মেরে দিল। আমরা ঘরে বন্দি অবস্থায় আছি। আমরা বিষয়টি যথারীতি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিডিও মহোদয়কে জানিয়েছি, এক্সটেনশন অফিসারকে জানিয়েছি। তো যারা ডেপুটেশন প্রদানকারীদের মধ্যে কোনো জনপ্রতিনিধি ছিলেন কি? ছিলেন। ওনারা কোন দলে? ওরা সিপিআইএম দলের দুজন মেম্বার ছিলেন, প্রফুল আলী এবং মুজিব আলী। মানে মূলত কী কারণে মানে আপনাদের গড়বন্দি করলেন? মূলত বিষয়টা এখানে তো দীর্ঘদিন পঞ্চায়েত ছিল না, আবার পুনরায় পঞ্চায়েত হয়েছে, প্রধান নির্বাচিত হয়েছে, হওয়ার পরে একটা সভা হয়েছে। ওই সভাতে ওনারাও চিঠি পেয়েছিলেন সভাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য, কিন্তু ওনারা কী কারণে আসেননি জানি না। তারপরে ওই সভা হয়েছে, যেহেতু কোরাম হয়েছে, সভা হয়েছে, সভায় সিদ্ধান্তগুলো হয়েছে, ওনারা বলছেন এই সিদ্ধান্তগুলো অবৈধ। ওই অবৈধ শব্দটাকেই ব্যবহার করে ওনারা তালা মেরেছে। তো আপনারা এখন ঘরের মধ্যে কয়জন আছেন? আমরা 4 জন আছি। সবাই সরকারি কর্মচারী? সবাই সরকারি কর্মচারী। তো ওনাদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ করা হয়েছে যে অবৈধভাবে নাকি রেজুলেশন নেওয়া হচ্ছে। না, এটা অবৈধভাবে কীভাবে নেওয়া হবে? 4 জন পঞ্চায়েতের সভা হয়েছে, সভাতে ওনারা আসেননি। না আসাতে যে সভা হয়েছে, কোরাম হয়েছে, সভা হয়েছে, এগুলা কীভাবে অবৈধ হবে? আর অবৈধ হলে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ওনারা বলবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি মিটিংটাকে অবৈধ বলে তাহলে অবৈধ। তো এখন তো প্রায় বিকাল 5টার উপর বাসটা চলছে, মানে আর কতক্ষণ থাকবেন এভাবে? ওনারা যতক্ষণ তালা খুলছে না আমরা তো থাকতেই হবে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হচ্ছে? পুলিশ প্রশাসন আমাদের বাইরে আছে, ওনারা দেখছেন বিষয়। কোন থানার পুলিশ এসেছে? ইরানি থানা। পঞ্চায়েত অফিস তালা रोजाकमानि कक्टमा मानखेना आमसायाव थांबाय सबायखा कयला शहर थानानि पुलिस पाइथागो पुलिसनि साइटआव मुंबाय पञ्चायत तांनकनि दोगलाम फियावगै रोजाकमानि कक्टमा ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां शाकनि बखरकनि बखनाय सिलै क्यान्सार बेमार मानजा खरकसा साकरा जगना बखनाय याफारका बिसिबा उमरनि अनसुया गुस मंगै खरकसा सराय शिशु बिहार स्कुल केजि 2 परि उइतंनाय बिसिबा उमरनि अचेरानि सामुंग नगै बनो बेलाय खाtung जाकमानि याफार लायगा हास्तिनि जतलो कर তাইরও কষ্ট আছে তো সাধ্য সবার শিক্ষা খুবই তুলতে बिसिबा उमरनि चेराय आनसुया गुसनि वानसुं मंग तेलुगु हामसा मंग नगै बेलाय नकमांग माव कलाख्या अ हास्तेनि जतलो कर
শিশু বিহার স্কুল কেজি2 পরিউই টংনাই অচেরানি সামুংকো বুইনো বেলাইनो খাদং থতক সাকনি বখরকनि बखनाय सिलै केन्सार बेमार मानजा खरकसा साकादा जगनो बखनाय याफरगा बिसिबा उमरनि आनसुया गसमोय खरकसा सराय केन्सार बेमार मानजाकमानि यागुलो किमोना हारै कगै थांबायगा महाराष्ट्र हास्तिनि संगमित्रा शालिग्राम मुंगै खरकसा साकादा जगनि बखरकनि बखनाय पाइथागो अ साकादा जगनि बागै सिगांगै फाइमानि बेंगालुरुनि कायसा एनजिओ O NGO ni awai mung nugui no paithago cancer bemar manjak sangomitra shaligram no shakni bokhorokni bukhnai silai bono bukhnai yafanani wansok mung harmani Agartala Barduali amsani bishiba umorni ansuya gosmongoi khoroksa sarai আমরা এটা এই নাগপুর ইন্ডিয়ান ক্যান্সার ইনস্টিটিউট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওনার এখানে 50 বছর মহিলা একজন বয়স 50 বছরের বয়স্ক একটা মহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সমস্ত মাথার চুল ঝরে যায় তো ওরা এই প্রকৃতি ফাউন্ডেশন নামে একটা এনজিও আছে বেঙ্গালুরে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে আমাদের সঙ্গে আমাদেরও ইচ্ছে যে আমার মেয়ের চুলগুলি এত যত্ন সহকারে আমরা বড় করেছি আমরাও যদি এই সুন্দর একটা সামাজিক কাজে আমরা এই চুলগুলি ডোনেট করতে পারি তাতে আমরা আরও খুবই মানে আনন্দিত এবং আমাদের দেখে যাতে অন্যান্য মেয়েরা মায়েরা যদি এভাবে ডোনেট করে আমাদের ক্যান্সার রোগীদের পাশে দাঁড়ায় এই জন্য আমাদের এই একটা পদক্ষেপ নেওয়া আমরা সবসময় সামাজিক কাজে আছি আমার স্বামী অনিমেষ ঘোষ উনিও মানে বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত আছে তো আমিও প্রোগ্রাম অফিসার একটু আগে বলেছি এনএসএস এর তো আমরা যদি এই কাজ একটু করতে পারি মানে সাধারণ হলো আমরা ভীষণ খুশি থাকি এই কাজে তার জন্য এই পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি এবং আরও এটা আমরা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে যদি এটা আরও আমাদের মিডিয়ারা এসছেন এখানে এই খবরটা পেয়ে তাদের আমি এখানে আমার মিডিয়া বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এখানে সম্মান আপনারা বাড়াতে এসছেন আমার এখানে আমার বাসভবনে এসছেন এবং আমরা খবর পেয়েছি এইভাবে ওই মহিলা যে ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলা নাম হচ্ছে সঙ্গমিত্রা সঙ্গমিত্রা মানে মহিলা বয়স 50 বছর এখন উনি চিকিৎসাধীন আছেন নাগপুরে চেন্নাই তো হসপিটালটা নাগপুরে চিকিৎসাধীন আছেন এবং আমাদেরও আমরা একদম সৌভাগ্য বলে মনে করছি আমরা আমাদের পরিবারটা কেন মানে আমার মেয়ের চুলগুলি যদি এই মহিলার মাথায় যদি প্রতিস্থাপন করা যায় আমরা মানে খুব নিজেকে গর্বিত বলে মনে করব এই আর কি তো আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি আগামীকাল আমরা চুলগুলি পুরো মানে আমরা করে পুরো সমস্ত মাথার চুল নেড়া করে আমরা একদম এগুলি পুরো সুন্দর করে পরিচর্যা করে চুলগুলি আমরা প্যাকেট করে কুরিয়ার করে পাঠাবো আপনার মেয়ের নাম আমার মেয়ের নাম অনুসুয়া ঘোষ সে শিশু বিহার স্কুলের ছাত্রী কেজি2 তে পড়ে বয়স 5.5 বছর এই বয়সে আপনি আপনার মেয়ের চুলগুলো দিয়ে দিচ্ছেন মানে কোনো মানে একদমই না আমার চাইতে আমার মেয়ে ভীষণ খুশি কারণ সে মানে প্রথম থেকে বলেছি আমি মা তোমার চুলগুলি এরকম হ্যাঁ মা দিয়ে দাও আমার এই চুলগুলি যদি আজকেও 2-3 বার বলেছে যে এই আন্টির মাথায় লাগাবে আমরা ফটোও দেখিয়েছি এই আন্টিকে এখন আমরা দেইনি কারণ আমরা আগে চুলগুলি কালকে করি প্যাকেট করব এরপরে আমরা ভেবেছিলাম হয়তো নিজের যখন চুলগুলি থাকবে না একটু কষ্ট পাবে এই আমার মাথায় চুললে কিন্তু একদমই না আমাদের থেকে সে আরো পজিটিভ এই দেখে আমার বাচ্চার এই উৎসাহিত আবেগপ্রবণ মনোভাব দেখে আমি আরো অত্যন্ত খুশি আমি এবং আমার পরিবার শিশু বিহার স্কুল কেজি2 পরিউই টংনাই অচেরানি সামুং কুবিনো বেলাই খাতং থতক আবনি বাগै বনো বেলাইনো খাতং মুংতেই খাকা হামিয়া ফরলাইকা হাস্তিনি যতল করক রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি কক্থম চিনি খরাং তাবু কিসা লেংলামা নিজরা তেব হাস্তে হায়ংতে হাকততে কক্তমাতো বই ফাইতঙ্গ লেংলামা নিয়াগুলো মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স
আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। লেংলামান ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক কনস্টিটিউশনাল সলিউশननि सानमुंग फाइनाय 30 सेप्टेम्बर सालमारिवा दामचेने जरानि बागै एडिसि बन साखलायखा तिप्रा मथा चाशालानो यंगमाओ काशे कक्तुम पान्दा खलायै अ साखलाय मंगरेखा तिप्रा मथानि गजाम चेयारमैन महाराज प्रदोत किशोर देबबर्मा बाइक बकरा जग संनि नकनि नगो किफिरमानि नामा वल हार पार्टी मंगो कलाई जखा राकेश मिया मुंगै खरकसा बरकनि नांमा आबा हाइगेनो थिमारा जाग बिदि बिहि ते खरक थाम बसारक पार्टी मंग फासल छारेको उदयपुरनि गरजि आमसायो Shikang ni joni laimani party mongno kitingai fashal hora pukhri ni teyo bithelo khlai ramani bai thei thangbai kha pukhri ni beba kotor chikon a party mongo subroto namo sudra mongoi khorok saborok ni sakawo kokse jamti saka nokang bisajit namo sudra party mong khwai thanani utor singbi sara amsayo Sikango jora khajak tongmani haige chashalo rajokhara agulini dosro date auditorium hall khlaijaka IPFT National Federation for New State ni joint convention panda o manjakha NFNS ni president Dr. Manish Tamang Kaijuku Shanmungo deputation Domani Jorawa, Ponchayat Secretary Nithani Mungshapirok Mumanya Angai, Paitago Ponchayat Tangnok ni Doglam Tala Khabre Dekha Amsani Rokorok. Shakni Bokrok ni Bukna Shile Cancer Bemar Manza Koroksa Sakara Zakno Bukna Yafarka, Bishiba Umoni Ansuya Gos Mungai Koroksa Sarai. Shishu Bihar School KG2 Pori Witongai Bishiba Umoni Ocherani Shamunganogoi, Bono Belai Khatung Zakmani Yafar like a Hastini Jotolokura. Tabu Koktama Shukrubai. Chashala Ayushman Babajan Arogya Yosnani Bishiba Pumani Shanoragai, Madhya Pratapgarh Primary Health Center ni Shakhtar Mumbai, Khlaijaka Kaisa Rally ni Bishingtei Ayushman Card Khalanyani Bagai, Lokorokno Shakhtar Mungna Hanani Bagai Tishajaka Khorang. প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়ুষ্মান ভারত এবং আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাভোগীদের আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে Ashara Agartala Jaga Harimura Health and Wellness Center Baskangni Shimi Changzaka Rally. Paithago Rajokhara Agulini Dalbidala Harkitingi Rally Klaimani Yagolo, Haino Hajaga Harimura Health and Wellness Center Baskango Pai, Paire Rizaka Ashalni Rally. প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 5 বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমাদের এই র্যালিটা অ্যাওয়ারনেসের জন্য কি মেসেজ দিতে চাইছেন এই র্যালি থেকে আমরা যাদের এখনো আয়ুষ্মান কার্ড হয়নি ওদেরকে বলবো আমাদের হাসপাতালে এসে আয়ুষ্মান ভারতের হেলথ ডেস্কে এসে জন্য আয়ুষ্মান কার্ড করিয়ে নেবে আয়ুষ্মান কার্ড করানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিঠি আর 2016-17 RSBI কার্ড রেশন কার্ড আধার কার্ড নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি আপনার পরিচয় আমি ডক্টর দেবাজ্যোতি ঘোষ ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর আয়ুষ্মান ভারত PMJ মানুষ এই কর্মসূচিটা সম্পর্কে জানুক মানুষ প্রধানমন্ত্রীর যে এই পরিকল্পনার অংশীদার হোক যখন সাধারণ মানুষ কোনো পরিকল্পনার অংশীদার হন তখনই একটা পরিকল্পনা সার্থক হয় আমাদের আজকে র্যালি যারা ডাক্তাররা যারা আছেন প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর যারা আছেন যারা আছেন তারা আমরা সবাই এই মেসেজটা দিতে চাই তারা যেন এই প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করে
প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। NSS de Shalno Buskango Tonoi Chashalo Jugendronogor ni Indro Colony Amsani Kurino Kungni Borokno Richumya Paredeka Women's College ni NSS unit ni Adongjuk Song 24 September NSS de Bishi Burum Burum no O Shalno Khatung Khazani Bishingti Haste Gananga Yasak Zago Abo Haike NSS de Shalno Buskango Tonoi Chashalo Jugendronogor ni Indro Colony Amsani Kurino Kungni Borokno Richumya Paredeka Women's College ni NSS unit Women's College ni NSS unit ni Khoroksa Adongjuk Shaka Bishi Burum Burum no 24 September o Shalmari wo NSS de Shal Panda Khlayo Hnai 24 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ কাল এনএসএস ডে উপলক্ষে আমাদের আগরতলা ওমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আমরা এই ইন্দিরা কলোনি গ্রামে এসে এই এলাকার মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করছি আর আমরা চাই যে এই কর্মসূচি যেন অব্যাহত থাকে। আগামীকাল 24 সেপ্টেম্বর এনএসএস ডে এই উপলক্ষে আমাদের উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট এই গ্রামটা আমরা দত্তক নিয়েছি কলেজ থেকে। এই গ্রামে আজকে আমরা সামনে শারদীয়া উৎসবও এই জন্যে আমরা এই গ্রামে আজকে বস্ত্র বিতরণ এই অনুষ্ঠানটা করছি। আমাদের এই কর্মসূচিটা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। আমরা প্রতি বছরই এই কাজটা করে থাকি। আপনার পরিচয়? আমার নাম রমা ভট্টাচার্য, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার। Bureau Report Chini Khorang Chashalokke Gramani Bishingte Iskon Mondiro Palaizakha Radhastomi Sal Pandao Manjaka Montri Dinkoroi te BJP ni Haste Asufan Raji Bhattacharya no Khobai Kobun Ozmarok Padro Masni Shukla Pokshani Ostomi Tithi Shalono Khlaijago Radhastomi Shal Aboni Bagai Chashalo Bishi Burum Burum ni Haike Taklaibo Iskon Mondir ni Luaji Mumbai Khlaijakha Radhastomi Shal Ashaloke Gramani Bishingte Iskon Mondiro Palaijakha Radhastomi Shal Pandao Manjaka Montri Tinkuroi te BJP ni Haste Asufan Raji Bhattacharya no Khobai Kobun Ozmarok Paithago Hasteni Joto Lukurokni Hamkrai Shanai Shurimani Narkha Montri Tinkuroi no Khobai Pandao Manjangnai Kobun Narwairok রাধারানীর অভিষেক যেরকম জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের অভিষেক হয় সেরকম রাধাষ্টমীতে রাধারানীর অভিষেক হয় অভিষেক পরে অনেক পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় প্রথমে কেক কাটা হয় আজকে আমাদের কেকটা অর্পণ করেছেন বিশ্বজিৎ মহাশয় চেয়ারম্যান আমাদের ওল্ড আগরতলা টাউন আর ওনার কেক আজকে সবাইকে বিতরণ করা হবে তাই সবাই অনেক আশীর্বাদ করুন যে ভবিষ্যতে ওনার পরিবার সবাই সুবিধান থাকুক আর কল্যাণ করুন। যে রাধা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমরা এখানে সবাই সামিল হয়েছি ইস্কন মন্দিরে একটাই থাকবে যে ঈশ্বর যেন সবাইকে ভালো রাখেন সবাইকে সুস্থ রাখেন আগামী দিনগুলি যেন মানুষের ভালো হয়ে আসে সামনেই দুর্গাপুজো আসছে এই পুজোতেও যেন আমরা সবাই ভালোভাবে কাটাতে পারি রাজ্যের মানুষ এটাই আজকে প্রার্থনা রাধার কাছে আর সবাই আমরা ইস্কন মন্দিরে আসি আগরতলাতে একমাত্র ইস্কন মন্দির যেখানে প্রতিনিয়ত কৃষ্ণ ভক্ত যারা বিশেষ করে যারা সামিল হন একটাই প্রার্থনা আপনারাও ভালো থাকবেন আপনাদের পরিবারের লোকও ভালো থাকুক সবাই যেন ভালো থাকে। ইস্কন মন্দির দ্বারা আয়োজিত আমাদের রাধা অষ্টমী যে পুণ্য দিনে ওনারা এখানে রাধা অষ্টমী পালন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং রাজ্যবাসীর সকলের যাতে মঙ্গল হয় সেই মঙ্গল কামনা করে এখানে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আমি সকলকে
আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে এই ইসকন মন্দিরের সঙ্গে যারা জড়িত সমস্ত ভক্তদেরকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এই রাধা অষ্টমীর শুভ প্রার্থনা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তিনি ni koktoma asuk jora tenyo tebo haste hayung te hakoto ni koktoma saimana ne bagai choya wei nai tongdi chini khorang তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable। ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে 2023-24 ইং ও 2023-25 ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 ইং থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনও খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং এডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো। % seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা RPWD Act 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে।
আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা ITI ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ। ITI বক্সনগরে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ ITI বক্সনগরে অনলাইন ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ট্রেডে এখনও কিছু আসন খালি আছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য পুনরায় নির্দিষ্ট নমুনায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। মেধাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে এই পর্যায়ের আসন বণ্টন করা হবে। সরকারি বিধি অনুসারে মোট আসনের 5% জাতি নির্বিশেষে দিব্যাঙ্গ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। দিব্যাঙ্গ প্রার্থীরা RPWD Act 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেডের যোগ্যতা চিহ্নিত করে পছন্দের ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রথম, ভর্তির নিয়মাবলী শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। আবেদনপত্রের নমুনা ITI বক্সনগরে নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে। দ্বিতীয়, আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেটের সেলফ অ্যাটেস্টেড প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। তৃতীয়, আবেদনপত্র জমা নেওয়ার তারিখ 13/9/2023 থেকে 16/9/2023 বিকাল 4টা পর্যন্ত। চতুর্থ, মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ 19/9/2023 সকাল 12টা পর্যন্ত। পঞ্চম, মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তির তারিখ 19/9/2023 দুপুর 2টা থেকে 20/9/2023 বিকাল 4টা পর্যন্ত। ষষ্ঠ, মেধা তালিকার ক্রম ও ত্রিপুরা সরকারের আসন সংরক্ষণ বিধি অনুসারে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ট্রেড অথবা আসন বণ্টন হবে। সপ্তম, মেধা তালিকা অনুযায়ী নাম ডাকলে কাউন্সেলিং বোর্ডের সামনে এসে হাজির না হলে সেই প্রার্থীকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তী প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে। অনুপস্থিতির বিষয়ে পরবর্তীকালে কোনো ধরনের দাবি অথবা অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না। অষ্টম, ভর্তির কাউন্সেলিংয়ে আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনই কৌশন মানি 1000 টাকা নগদ, 2 কপি ছবি ও সমস্ত সার্টিফিকেটের অরিজিনাল এবং সেলফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স প্রতিলিপি সহযোগে ভর্তি হতে হবে, অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী যোগ্য আবেদনকারীকে দেওয়া হবে। নবম, ড্রপ আউট প্রশিক্ষণার্থীদের কৌশন মানি ফেরত দেওয়া হবে না। ভর্তির কাউন্সেলিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য আবেদনকারীদের আলাদাভাবে কল লেটার পাঠানো হবে না। দশম, সংবাদপত্রের মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। সংবাদপত্রের মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। অতিরিক্ত তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ নম্বর 9862243985 অথবা
7005257850। স্বাক্ষর শুভদীপ পাল, অধ্যক্ষ, ITI বক্সনগর, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, আগরতলা, ত্রিপুরা। 2024 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয় প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য পুনরায় জানানো যাচ্ছে যে সকল ছাত্রছাত্রী 2024 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কন্টিনিউইং কম্পার্টমেন্টাল এক্সটার্নাল কম সিঙ্গেল সাবজেক্ট ইকুইভ্যালেন্স ক্যাটাগরি ইমপ্রুভমেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে। ইমপ্রুভমেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে তাদের ফর্ম 15/9/2023 তারিখ